Hello everyone, welcome to PSC Notes. So today we are going to start with our new chapter, Lodi Dynasty in medieval history. So Lodi Dynasty initiated in 1451 and ended in 1526 with the first battle of Panipat. So now we have a map explaining the extension of the Lodi dynasty. So it basically covered Punjab, UP, parts of Madhya Pradesh, and few parts of Bihar. Now, one thing which is very important is the source. So, what are the sources for the Lodi dynasty? So, it is Tarikh-e-Farishta, which is written by Muhammad Qasim Farishta in Persian language. So, all three facts, which is Tarikh-e-Farishta, written by Muhammad Qasim Farishta and in Persian language. It is basically Indian chronology and archaeology. So now we will start with the rise of Lodi dynasty. So why did the Lodi dynasty was able to overcome the Sayyid dynasty? So Sayyid dynasty became weak and ineffective. So due to weak and ineffectiveness, Bahlol Khan Lodi, who was originally under a governor under Sayyid dynasty, but he was able to overthrow the Sayyid dynasty in the year 1451. 1451. One thing which is very important here is that he was an Afghan noble. So earlier to that, it was a Turkish rule. That is, the Sayyids were the Turkish. Sayyid dynasty was Turkish. Sayyid dynasty was Turkish, but the Lodi dynasty was Afghan. So it has already been asked in the previous year PYQs, as we will cover. So this is the important fact that who was the founder of the Lodi dynasty? He was Bahlol Khan Lodi. He was a governor under the Sayyid dynasty, but as the Sayyid dynasty became weak, so he was able to capture the throne of Delhi in the year 1451. So one thing which is very important is his Afghan dynasty identity. So earlier to him, the Sayyid dynasty was Turkish in origin, but they were Afghan. So they promoted the Afghan nobles. And because of them, they were able to create a stable dynasty. What was the governance? The governance was very simple and very simple in not only the aristocracy, but even in the lifestyle. And they have a very strong military presence. He ruled for 38 years and was succeeded by his son Sikandar Lodi. So Sikandar Lodi is one of the most important figure in the Lodi dynasty. Why? You will get to know that most of the questions in prelims is related to Sikandar Lodi and his establishment of Agra. So we will cover then. So now next come to Sikandar Lodi. So Sikandar Lodi rule was from the year 1489 to 1517. 1489 to 1517. His original name was Nizam Khan. What was his name? Nizam Khan. So Naam Nizam Khan tha, but on the throne he sat as a Sikandar Lodi. His name was Nizam Khan. तो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और उसने क्या किया, सेंट्रलाइज की
अपनी ताकत नोबल्स जो थे, अफगान नोबल्स जिन्हें प्रमोट किया गया था बहलोल खान लोधी द्वारा, उन्हें सिकंदर लोधी ने उनकी इकोनॉमी को थोड़ा सा कंट्रोल किया और अपनी पावर सारी अपने हाथ में ली। उसके बाद उन्होंने एक्सपेंशन किया और 3 रीजन्स को इन्होंने कैप्चर किया। वो था बिहार का, धौलपुर का, ग्वालियर का। All 3 were very good large kingdoms. So this was the expansion of Delhi Sultanate. He founded Agra in 1504. कब फॉर्म किया? 1504. तो ये 1504 और सिकंदर लोधी फाउंडेड आगरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और after that he later shifted his administration also there. So he is known for his religious intolerance and destroying several Hindu temples and imposed restriction on religious practices. In fact, जो religious practice होती है उन पे टैक्स भी लगाया। तो he is known for रिलीजियस इंटॉलरेंस। पर्शियन कल्चर को इसने काफी पोइट्री और आर्ट को प्रमोट किया, ठीक है। उसके साथ साथ खुद भी ये पोएम्स लिखते थे विद द नेम ऑफ गुलरुखी। किस नाम से? गुलरुखी। ही इज ऑल्सो नोन फॉर एबोलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन ग्रेन्स। तो ग्रेन्स पे टैक्स किसने एबोलिश किया? वो भी सिकंदर लोधी ने। और साथ के साथ इन्होंने एग्रीकल्चर और जो इरिगेशन है उसके अंदर इन्होंने रिफॉर्म किए थे, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। तो एक तो टैक्स, उन्होंने लैंड टैक्स को रिड्यूस किया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ग्रेन पे टैक्स किसने एबॉलिश किया? तो इट वाज सिकंदर लोधी, ठीक है। इन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म में ही है गजे सिकंदरी, इट वाज अ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक गजे सिकंदरी का डेवलपमेंट किया जो आज भी यूज होती है, मेजर ऑफ लेंथ, ठीक है। और इसी दौरान एक इंपॉर्टेंट वो है लहजत सिकंदर शाही विच इज रिटन बाय नाजिम अहमद। लहजत ए सिकंदर शाही रिटन बाय Nazim Ahmad. His death in 1517 led to the succeeding of Ibrahim Lodi. So Ibrahim Lodi was the last ruler of the Lodi dynasty. ठीक है। तो now we will see about the Ibrahim Lodi. So his rule was from 1517 to 1526. केवल 9 साल का रूल था। और फिर बाबर के साथ इनकी जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी 1956, उसमें इनकी डेथ हो गई और उसके बाद लोधी डायनेस्टी फिनिश हो गई, ठीक है। तो ही वाज ऑटोक्रेटिक। अब तक जो मेन लोधी डायनेस्टी के रूलर्स का नियम था, तो वो अपने नोबल्स को रेस्पेक्ट देते थे और उन्हें काफी हद तक पावर थी। उन्हें सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई थी सिकंदर लोधी द्वारा, बट स्टिल दे वर वेरी पावरफुल। इन्होंने नोबल्स के साथ काफी हार्श ट्रीटमेंट किया और दौलत खान लोधी ने तो बगावत ही कर दी थी। दौलत खान लोधी जो पंजाब के थे, ही रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। तो अफगान गवर्नर्स के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं रहे। आफ्टर दैट इनके राणा सांगा के साथ 3 युद्ध हुए। तो फर्स्ट राणा सांगा फर्स्ट बैटल ऑफ खतौली इन द ईयर 1517, दूसरा बैटल ऑफ धौलपुर इन द ईयर 1590, थर्ड बैटल ऑफ रणथंबोर इन द ईयर 1521। इन द ईयर 1521 तीनों की तीनों बैटल में राणा सांगा ने डिफीट किया इब्राहिम लोधी को और फाइनली बाबर के साथ 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इनकी डेथ हो गई और डिफीट हुई। तो ही डाइड ऑन द बैटलफील्ड इटसेल्फ। और इसी के साथ लोधी डायनेस्टी फिनिश। तो 3 रूलर थे, ठीक है। वी कैन जस्ट रिवाइज वेरी क्विकली। फर्स्ट द फाउंडेशन वाज बाय बहलोल खान लोधी, ठीक है। देन सिकंदर लोधी एंड फाइनली इब्राहिम लोधी। तो नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन मेंस। तो विद द लोधी डायनेस्टी देयर इज ओनली वन क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन UKPSC मेंस एग्जामिनेशन फॉर 8 मार्क्स in 125 words.
which is what were the reasons for Abraham Lodi defeat in the battle of Panipat. तो देखिए नॉर्मल मीन्स आंसर 125 वर्ड्स का है, वेरी इजी, सारे के सारे स्टूडेंट्स लिख के आए होंगे, ठीक है, कि इनकी इलेक्ट्रिकल स्ट्रेटजी बेकार थी, आर्टिलरी में वीक थे, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे नोबल्स के साथ, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि देखिए इसमें आपने अगर तुंगनम एंड तुलुगमा, TULUGHMA, तुलुगमा, अ टैक्टिकल यूनिट ऑफ 1000 मैन, ठीक है, ये अगर मेंशन किया है तो दिस गिव अ स्पेसिफिक एज टू योर आंसर। तो व्हाट इज इट, दैट ही एम्प्लॉयड अ टैक्टिकल स्ट्रेटजी, जिसमें होता क्या था कि मान लीजिए एनिमी है, ठीक है, उसको हम छोटी छोटी यूनिट बना के उसके ऊपर अटैक करेंगे। हर यूनिट का अपना अलग स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रहेगा, अलग स्ट्रेटजिक तरीका रहेगा। दूसरा इनका टेक्नोलॉजी, इनकी आर्टिलरी काफी स्ट्रांग थी। तीसरा जो इनके अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे, जैसे ही हमने अभी पिछले ही पेज पे देखा था, इनके जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान लोधी, तो ही रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। तो अब कितने ही अफगान चीफ्स के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे, तो दे वर नॉट सपोर्टिंग हिम। थर्ड, द टेरेन वाज नॉट एट ऑल कंडक्टिव। अब तक इन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो प्लेन टेरेन पे नहीं की थी, या प्लेन टेरेन पे आर्टिलरी काफी ज्यादा हार्मफुल रही। तो वी कैन वेरी इजीली कवर दिस टॉपिक, दिस क्वेश्चन, ठीक है, इन 125 वर्ड्स। व्हाट वी नीड टू मेंशन दैट एक स्पेसिफिक टाइप की टेक्नोलॉजी टैक्टिक्स यूज की थी, विच इज तुलगमा, TULUGHMA। ये प्री में भी कई बार यूज पूछा जा चुका है, तो इट वुड बी गुड अगर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। बाकी 4 पॉइंट्स हैं, आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत रूलर्स वाज ऑफ अफगान ओरिजिन, ठीक है। तो वी ऑलरेडी कवर्ड कि टर्किश ओरिजिन उससे पहले हुआ करते थे, लोधी डायनेस्टी के बाद अफगान ओरिजिन के आए, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct chronology order of Afghan rulers to the throne of Delhi? हमने पहले ही देख लिया है, ठीक है, 3 रूलर। फर्स्ट जिन्होंने लोधी डायनेस्टी फाइंड की तो वो कौन थे, बेलोल खान लोधी, ठीक है। सेकंड आगरा स्टेब्लिश किया, सिकंदर लोधी। फाइनली बैटल ऑफ पानीपत में लूज किए कौन, इब्राहिम लोधी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी, ठीक है। नाउ कमिंग टू अवर थर्ड, तो दिस इज आज इन यूपीएससी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो टू विच लोधी सल्तन डज द गिवन मैप रिलेट्स। तो यहां पे ए इन्होंने मेंशन किया है, ये बेसिकली है क्या, तो ये है जौनपुर, ठीक है। और किसको मेंशन कर रहा है, जौनपुर को कैप्चर किसने किया था, बेलोल लोधी ने, who was the founder of Lodi dynasty, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बैटल डिड महाराणा सांगा डिफीटेड इब्राहिम लोधी। तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, 3 बैटल्स हुई हैं, और फर्स्ट बैटल बैटल ऑफ खतौली, ईयर हमने तीनों बैटल के एक बार देखिए जल्दी से देख लेते हैं, तीनों बैटल के ईयर। 1517 में बैटल ऑफ खतौली, 1519 में बैटल ऑफ धौलपुर एंड 1521 में बैटल ऑफ रणथंभौर, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान फाउंडेड अ टाउन वेयर नाउ स्टैंड्स आगरा। तो वी ऑलरेडी कवर्ड, सिकंदर लोधी। किस साल, 1504 में। अब पहले इस्टेब्लिश किया टाउन और बाद में वहीं पे अपना शिफ्ट भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो सेम,
medieval Sultan, founding of Agra and meeting in capital of Sultanate, Delhi Sultanate. तो it is सिकंदर लोधी. ठीक है. नेक्स्ट, विच रूलर फाउंडेड सिटी ऑफ आगरा? अगेन सिकंदर लोधी. ठीक है. आप मतलब ये क्वेश्चन तकरीबन मतलब पुराना नहीं है, 2018 में ही पूछा गया है, तो अभी भी ये रिपीट होता है अगेन. हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. ठीक है. हमने अभी देखा था कि ये ही प्रमोटेड आर्ट एंड कल्चर है ना, सिकंदर लोधी. तो ही हिमसेल्फ रोट इन द पेन नेम गुलरुखी. ही हिमसेल्फ रोट विद द पेन नेम गुलरुखी. तो कौन? सिकंदर लोधी. और इसमें एक और चीज हमने आपको बोली थी, ठीक है, अलॉन्ग विद इट, तो वो फैक्ट भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज लहजत ए सिकंदर शाही. लहजत ए सिकंदर शाही, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इट वॉज रिटन बाय नजीम अहमद. रिटन बाय नजीम अहमद. चलिए, ठीक है. सिटी आगरा सिटी वॉज फाउंडेड बाय, ठीक है. देखिए लगातार फिर से तो कोई नहीं. having which of the following sultans known to have abolished the tax on grains? तो ग्रेन्स पे टैक्स हटाया, ठीक है. और साथ में एग्रीकल्चर और इरिगेशन रिफॉर्म्स भी लाए. तो कौन लाए? सिकंदर लोधी. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इनमें से कौन सी स्लेव डायनेस्टी नहीं थी? ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी देखिए फर्स्ट डायनेस्टी थी, कब से कब तक? 1206 से स्टार्ट हुई थी, ठीक है, 1290 तक. तो ऑब्वियसली इब्राहिम लोधी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लेव डायनेस्टी. तो अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये गुड है. इसमें पूछ रहा है इन डायनेस्टियों का सीरियल ऑर्डर है. तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी. स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, अभी हमने देखा 1206 से 1290 तक, ठीक है. उसके बाद खलजी. नाउ खलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक. खलजी 1290 से 1320 तक. और उसके बाद आते हैं तुगलक, जो कि क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी सीरीज बने रहे तो उसके लिए हम लिख लेते हैं, ठीक है. तुगलक कहां से? 1320 से लेके 1414 तक. 1414. उसके बाद सैयद डायनेस्टी 1414 से 1451 तक, 1451. और लोधी डायनेस्टी हमने पढ़ी लिया है, 1451 में फॉर्म हुई और खत्म कर हुई. फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ईयर याद ही है, 1526. ठीक है. तो सीरियल ऑर्डर हम देख लेंगे. सबसे पहले आएगा अपना स्लेव डायनेस्टी विच इज 4, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन. फिर उसके बाद खलजी डायनेस्टी, उसके बाद 3 सैयद, देन लोधी, ठीक है, डी. तो इफ एनी डाउट यू कैन जस्ट point it here, or we will be going to cover mostly of your topics, and we will try to cover in both language, Hindi and English. Thank you.